Good morning, dear students. In a previous lecture, we had discussed about the February Revolution, the events of February Revolution. February Revolution started on 22nd February, and by March on 2nd March, the Tsar was overthrown, and in the place of Tsar, a provincial government was formed. If you notice the whole process, your whole movement, you had seen one thing, that the movement, the February Revolution, it was not supported by any political parties. And the revolution was organized by mostly the workers in the towns and cities, peasants or farmers in the countryside, and apart from that, the soldiers, army people, they participated in the movement. So what was the consequence, the major consequence of February Revolution? It was establishment of the provincial government. As the February Revolution, it was not supported by any political party. So when the provincial government was formed, in the provincial government, mostly the army official, landowners and the industrialists, they were very influential. So let us now discuss the consequences of February Revolution. February Revolution का consequence, outcomes या result क्या था? So February Revolution में when the provincial on March 1917, a provincial government was formed, and in that provincial government, army official, landowners and industrialists were very influential. ये influentials थे. तो after the establishment of provincial government, restrictions on public meetings, associations were removed, जो कि earlier it was prevalent. Earlier, it was illegal to form any association. It was illegal to hold any meeting. So after provincial government, all those restrictions were removed. Now, formation of association, then holding of public meetings were legal. And everywhere in Petrograd, Soviet-like Petrograd Soviet was formed. उसके बाद क्या हुआ था? In April 1917, the Bolshevik leader Vladimir Lenin, he returned to Russia from his exile. तो exile में कब गए थे, क्यों गए थे? Let me tell you the story. Lenin, he was a great follower of Marx, and he was a great disciple of Marx also. And Marx, what was Marxism? Marx was the founder of communism. Communism means Marx was against capitalism, against the capitalist. So, according to Marx, the workers were being exploited by the capitalist, by the factory owners. That is why Marx supported the workers in the factories to improve their condition, to form association, to form societies and fight for their benefits or fight for their demands. And Vladimir Lenin भी सेम थे, वो भी वर्कर्स को हेल्प करते थे, वर्कर्स के लिए एसोसिएशंस फॉर्म करते थे टू फाइट अगेंस्ट द फैक्ट्री ओनर्स. बट बिफोर 1914 फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वाज इलीगल. तो जो भी कोई ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करते थे, जो भी वर्कर्स को हेल्प करते थे, जार यूज्ड टू अरेस्ट हिम. So, due to that reason, in 1895, Lenin was arrested and he was put into the jail, and after that he was deported to Siberia. And there in Siberia he was about 20 years, more than 20 years he was there in Siberia. So after the February Revolution, on 2nd March, when the provincial government was formed and all restrictions on public meeting, associations were removed, Vladimir Lenin, he returned back to Russia. In April 1917, he returned to Russia from his exile. अब व्लादिमीर लेनिन
वो शुरू से he was against the war. So when he returned to Russia, he demanded 3 things. प्रोविंशियल गवर्नमेंट के सामने उन्होंने 3 थिंग्स का डिमांड किया था. एंड द डिमांड ऑफ लेनिन, द 3 डिमांड्स ऑफ लेनिन, इट वाज टर्म्ड एज लेनिन्स अप्रैल थीसिस. और वो 3 डिमांड क्या थी? 3 डिमांड में से एक डिमांड था ही वांटेड वॉर टू एंड, लैंड टू बी ट्रांसफर टू द पेजेंट्स एंड बैंक्स टू बी नेशनलाइज्ड. वो ये चाहते थे कि वॉर को अभी तुरंत रोक दिया जाए, लैंड को पेजेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए एंड बैंक्स को नेशनलाइज्ड किया जाए. नेशनलाइज्ड मीन्स अंडर द कंट्रोल ऑफ द स्टेट, स्टेट कंट्रोल में होना चाहिए, क्योंकि ही वाज अ सोशलिस्ट. ही वाज कम्युनिस्ट या सोशलिस्ट, और कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट का आइडियोलॉजी ही है ऑल द प्रॉपर्टी और नेचुरल ऑल द रिसोर्सेज ऑफ द स्टेट शुड बी कंट्रोल्ड बाय द स्टेट, बाय द गवर्नमेंट. एंड वो इन तीनों डिमांड गवर्नमेंट के सामने रखे. नॉट ओनली दैट, he changed the name of the Bolshevik party and it was renamed as the Communist Party. बोल्शेविक का रशियन में मतलब है मेजॉरिटी. तो पहले बोल्शेविक पार्टी था, अभी बोल्शेविक पार्टी का नाम चेंज करके उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी का नाम रखा है. जब लेनिन आए और 1917 में ये लेनिन थीसिस, अप्रैल थीसिस का डिमांड किया था, तो बोल्शेविक पार्टी के अंदर बहुत सारे मेंबर्स जो फॉलोअर्स थे, दे वर वेरी सरप्राइज्ड. क्योंकि उनको लगता था इट वॉज नॉट द करेक्ट टाइम टू स्टार्ट अनदर मूवमेंट, बिकॉज जस्ट ऑन 2 March द न्यू प्रोविंशियल गवर्नमेंट वॉज सेट अप एंड द गवर्नमेंट वॉज नॉट दैट मच स्टेबल. तो गवर्नमेंट पहले से गवर्नमेंट स्टेबल नहीं है, ऊपर से और भी कोई डिमांड रखना प्रॉपर जस्टिस नहीं होगा. बट लेटर ऑन they started supporting लेनिन. तो उसके बाद लेनिन ने क्या किया, अलग अलग workers in the cities, he supported the workers and workers movement spread throughout the summer. फैक्ट्रीज में अलग अलग कमिटीज का फॉर्मेशन हुआ, ट्रेड यूनियंस का फॉर्मेशन हुआ, अलग अलग एसोसिएशन का फॉर्मेशन हुआ. नॉट ओनली इन फैक्ट्रीज, आर्मी में भी सोल्जर्स कमेटी का फॉर्मेशन हुआ. जो भी बोल्शेविक पार्टी को सपोर्ट करते थे वो फिर यूनाइटेड हो रहे थे. दे वर फॉर्मिंग वेरियस एसोसिएशन, दे वर फॉर्मिंग वेरियस ऑर्गेनाइजेशन टू सपोर्ट द बोल्शेविक पार्टी. अब क्या हुआ, बोल्शेविक पार्टी जब सारे सपोर्टर्स बोल्शेविक पार्टी को सपोर्ट कर रहे थे, देन कमिटी फॉर्म कर रहे थे, ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म कर रहे थे, देन द प्रोविंशियल गवर्नमेंट वो डर गए थे. प्रोविंशियल गवर्नमेंट बिकेम स्केयर्ड ऑफ द इंक्रीजिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द बोल्शेविक पार्टी. तो इसलिए प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने क्या किया, प्रोविंशियल गवर्नमेंट tried to reduce the power of influence of Bolshevik party. तो जब भी उन्होंने बोल्शेविक पार्टी का पावर रिड्यूस करने चाहा, how they did that? They started arresting the Bolshevik leaders को अरेस्ट करने लगे, then Bolshevik workers को जबरदस्ती डराने लगे, धमकाने लगे, सप्रेस करने लगे. और इसके लिए जो बोल्शेविक लीडर्स थे वो बहुत डर गए थे. एंड ड्यू टू दैट फियर मेनी ऑफ द बोल्शेविक लीडर्स दे फ्ली द सिटी एंड दे ऑल्सो हाइड. वो छुप भी गए थे और शहर छोड़ के भाग भी गए थे. दिस वॉज द स्टोरी ऑफ द सिटीज एंड टाउन्स. जो वर्कर्स फैक्ट्रीज होती थी सिटीज में, कंट्री साइड में भी हुआ था. कंट्री साइड में क्या हुआ, कंट्री साइड में पेजेंट्स का शुरू से पेजेंट्स का मांग था द लैंड शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द फार्मर्स. तो कंट्री साइड में सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी थी एंड सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी दे सपोर्टेड द पेजेंट्स. सो विद द हेल्प ऑफ सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टीज द पेजेंट्स दे स्टार्टेड यूनाइटेड देमसेल्व्स. वो अपने आप ही यूनाइटेड होने लगे, देन वो अपने आप एसोसिएशन फॉर्म करने लगे एंड
अल्टीमेटली उन्होंने क्या किया, जुलाई सितंबर के महीने में 1917 जबरदस्ती लैंड ओनर्स से जमीन लैंड छीनने लगे। एंड ये although it was the consequences or outcomes of February Revolution, but it was also the starting point of October Revolution. इसी से अक्टूबर रेवोल्यूशन का शुरुआत हुआ था। तो पहले फेब्रुअरी रेवोल्यूशन का एम क्या था, टू एब्डिकेट, टू ओवरथ्रो जार, एंड अल्टीमेटली ऑन 2 मार्च जार को एब्डिकेट किया गया था, ओवरथ्रो किया गया था, एंड इन द प्लेस ऑफ जार प्रोविंशियल गवर्नमेंट वाज फॉर्म्ड। अब अक्टूबर रेवोल्यूशन में क्या हुआ था, अक्टूबर रेवोल्यूशन में प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ बोल्शेविक पार्टी की लड़ाई शुरू हो गई थी। सो लेट अस सी व्हाट हैपेंड इन द अक्टूबर रेवोल्यूशन। October Revolution में when Lenin came back from his exile and he became very powerful, most of the people they supported Lenin from all sphere of the society, workers, peasants, soldiers. So the provincial government became scared. तो इसलिए प्रोविंशियल गवर्नमेंट और बोल्शेविक के बीच में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया था। एंड द प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने सोचा था कि हाउ टू रिप्रेस, बोल्शेविक को कैसे दबाया जाए, कैसे रिप्रेस किया जाए। इसलिए प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने क्या किया था, बोल्शेविक लीडर्स को भी अरेस्ट किए। अब क्या हुआ, लेनिन ने क्या सोचा, लेनिन ने क्या देखा, लेनिन फियर्ड that the provincial government would set up a dictatorship सेट कर वो हो जाएंगे। इसलिए लेनिन ने जितने भी उनके सपोर्टर्स थे सपोर्टर्स को इकट्ठा करने लगे, whether they were workers, whether they were peasants, whether they were in army, Lenin started united, then forming organization, सबको इकट्ठा करने लगे in support of Bolshevik party. And ultimately क्या हुआ, on 16th October 1917 Lenin persuaded the Petrograd Soviet and the Bolshevik party to agree to a socialist seizure of power. तो अब 16 फरवरी अक्टूबर में लेनिन ने सबको इन्फ्लुएंस कर दिया था, सबको मोटिवेट कर दिया, इन्फ्लुएंस किया था फॉर व्हाट, फॉर अ सोशलिस्ट सीजर ऑफ पावर, सोशलिस्ट सीजर के लिए। इसके लिए भी उन्होंने एक मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी का फॉर्मेशन किया था अंडर द लीडरशिप ऑफ लियोन ट्रॉट्स्की। लियोन ट्रॉट्स्की के लीडरशिप में अ मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी वाज फॉर्म्ड फॉर व्हाट, फॉर अ सोशलिस्ट सीजर ऑफ पावर। लेकिन बोल्शेविक लीडर लेनिन ने क्या किया था, ऑन विच डेट द पावर विल बी सीज्ड, वो डेट को उन्होंने सीक्रेट रखा था, बिल्कुल किसी को नहीं बोला था। इसलिए क्या हुआ, अक्टूबर रेवोल्यूशन में 24 अक्टूबर को, 24 अक्टूबर उस टाइम जो प्राइम मिनिस्टर थे केरेंस्की, उनको पता चल गया था, उनको भनक लग गया था, समथिंग इज गोइंग टू बी रॉन्ग, द बोल्शेविक्स आर डूइंग समथिंग। तो उन्होंने शहरों सिटीज में से ट्रूप को या आर्मी को बुला लिए थे, आर्मी को बुला लिया। नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग में आर्मी को भेज के जितने भी 2 बोल्शेविक बिल्डिंग्स, जहाँ पे न्यूज़पेपर बिल्डिंग्स था बोल्शेविक का, दोनों को सीज किया था। उसके बाद गवर्नमेंट की टेलीग्राम, टेलीपोस्ट, देन विंटर पैलेस को गार्ड करने के लिए आर्मी को तैनात किए गए थे। उस टाइम क्या हुआ, आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, द पेट्रोग्राड सिटी वाज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स बाय द रिवर नेवा। नेवा के लेफ्ट साइड में विंटर पैलेस था और नेवा के राइट साइड में वर्कर्स क्वार्टर। तो ये जो मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी थी, उन्होंने वाटरवेज विंटर पैलेस को अटैक किया था। फॉर दैट दे यूज्ड अ वेरियस शिप का यूज किया था। जो मेजर शिप यूज हुआ था विंटर पैलेस को अटैक करने के लिए, द नेम ऑफ दैट शिप वाज अरोरा। तो नेवा रिवर में से विंटर पैलेस को अटैक किया गया था। 25 अक्टूबर को विंटर पैलेस के ऊपर हेवी बॉम्बिंग भी हुई, फायरिंग भी हुआ है, एंड अल्टीमेटली रात होते होते ही
सभी मिनिस्टर्स ने सरेंडर भी किया था. By nightfall, the city was under the committee control and the minister had surrender भी किया था. उसके बाद the military committee सभी ministers को, official को arrest भी किया था and ultimately the Winter Palace ultimately at the meeting of all Russian Congress of Soviet in Petrograd, the majority approved the Bolshevik action. Bolshevik action को उन्होंने support भी किया था और 1-2 महीने में by December the whole Petrograd and Moscow it was under the control of Bolshevik. Bolshevik के control में आ गया था. So it was what happened in the October Revolution. February Revolution में the Tsar was abdicated. October Revolution में the power came into the hands of Bolshevik. So I think it is clear to you. Thank you and have a good day.